Good morning, students. Today we are going to read the chapter 9 of your resolution book. As you know that resolution book contains 10 marks for your board exam, and we are reading the themes, the summary, the main points, the main inherited points of all the chapters till now of your resolution book. As you can understand that resolution book do not carries much marks. It only carries 10 marks. So what I am teaching you is to understand the very essence of every chapter. I have already told you that first of all you have to read the chapter thoroughly. After reading the chapter you will listen to my video. Then you will get it quite conveniently. You will understand the actual meaning, or the actual means you will get the complete understanding of the chapter once you read the chapter at first and then listen to my video. Then it will be completely clear to you. So again I am giving you the instruction to read the chapter Uttanka's Guru Dakshina for your own, and after reading the chapter you will listen to my video. Now first of all understand the theme of the lesson. This story portrays devotion, respect and sincerity of a disciple towards his teacher. In Hindu epic Mahabharata, Uttanka's legend has been narrated. After acquiring all knowledge from his guru, he expresses his desire to pay back his gift. On denial from his master, he goes to his mistress, who expresses her desire to wear the earrings of the queen in a feast. In an aim to fulfill his mistress' aspiration, Uttanka goes all through the forest to see the king and queen. On the way, he came across a huge man who offers him to drink filthy water and assumed that it will give him strength. तो स्टूडेंट्स, उत्तंकास गुरु दक्षिणा जो कहानी है ये एक ऐसे शिष्य की कहानी है जो अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उत्तंका ने गुरु को कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया। फिर उत्तंका गुरु माँ के पास जाता है, तो गुरु माँ ने एक इच्छा जाहिर जरूर की कि मुझे हमारे राज्य की जो रानी है उनके आँखों के उनके कानों के कुंडल या बालियाँ चाहिए। ये मांग गुरु माँ ने की। तो गुरु माँ की मांग को पूरी करने के लिए उत्तंका जो था वो जंगल से होते हुए महल में, राजा रानी के महल की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में उसको एक विशाल आकार का आदमी मिला जिसने उसको गंदा पानी पीने के लिए कहा। उसने ये कहा कि एक छोटा सा जलाशय है, उसका गंदा पानी अगर आप पियोगे तो उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। At last he reached the palace and goes straight to the king and requests for earrings. The king advised him to seek permission from the queen. Queen was very impressed with his loyalty and gave him her earring willingly. The queen advises Uttanka to be careful as the earrings have been coveted by the serpent king. Uttanka thanks her and heads back towards the hermitage. On the way back, the earrings are snatched by the serpent king. It does not give up and tries hard to get earrings back. When he gives the earrings to the mistress on time, she blesses him for his courage. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से वो जंगल में उसको एक व्यक्ति मिला और गंदा पानी पीने के लिए उकसाया। उसने वो पिया भी क्योंकि उससे उसको ताकत मिलने वाली थी। चलते चलते वो अंततः राजा रानी के महल में पहुंचा और राजा से अपनी गुरु माँ की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें इसके लिए रानी से बात करनी होगी।
वो रानी से मिलने गया तो रानी खुशी खुशी उसको अपना ईयररिंग्स दे दी। रानी ने कहा ये ईयररिंग्स जो है इसको बहुत संभाल के अपनी गुरु माँ के पास ले जाना, क्योंकि रास्ते में एक बहुत विशाल सांपों का राजा आता है, रहता है। वो काफ़ी समय से मेरे जो कानों की बालियां हैं उसकी तलाश में है, तो वो तुमसे छीन सकता है या लेने की कोशिश कर सकता है, उसका ध्यान रखना। उत्तंका ने रानी को धन्यवाद कहा और आश्रम की तरफ रवाना हुआ वापस। चलते चलते वो एक जगह उसको थोड़ी सी नींद आ गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुस्ताने लगा और उसी क्षण या उसी दौरान वो सांपों का जो राजा था वो उसकी ईयररिंग्स छीन लिया। लेकिन वो हार नहीं माना और लगातार कोशिश करते रहा ईयररिंग्स को वापस पाने के लिए, और उसकी लगातार कोशिश से कामयाब हुई और अंततः उसने ईयररिंग्स अपनी गुरु माँ को लाके दे दी। तो ये तो थी थीम। अब इसकी समरी भी थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरह से। समरी में सारी बातें आ जाएगी। अबाउट उत्तंका, इन द Hindu epic Mahabharata, Uttanka was a disciple of a famous sage. He was very sincere, obedient, intelligent and courageous. Uttanka wishes to pay back his master. He expresses his desire to pay back his master for all his teachings as a Guru Dakshina. His master told him that he had no desires. He asked him to consult his mistress. The longing of the mistress is Uttanka's mistress expresses her aspiration for the earrings of the queen, which she always cherished and wanted to wear them in a feast. This makes Uttanka surprised. तो देखो उत्तंका के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसके मास्टर के बारे में बताया जा रहा है, या उसके उत्तंका की इच्छाओं के बारे में और उसकी गुरु माँ के बारे में बताया जा रहा है। उत्तंका जो था वो तो महाभारत कालीन एक बहुत उत्तम शिष्य था, जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता, आज्ञाकारिता, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था। उत्तंका की इच्छा ये थी कि वो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा दे। लेकिन गुरु ने एक विचित्र जवाब दिया कि मेरी तो कुछ इच्छा ही नहीं है। होता है अक्सर ऐसा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं उनकी तपस्या करते करते उनकी इच्छाएं जो है वो शांत हो जाती हैं और उन्हें इस दुनिया से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो गुरु ने तो अपनी अनिच्छा जाहिर की और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब उत्तंका ज़्यादा जोर देने लगा तो गुरु ने ज़रूर ये कहा कि जाकर के गुरु माँ से पूछ लो। जब उसने पूछा तो गुरु माँ ने कहा कि मैं किसी समारोह के दौरान रानी के कानों की कुंडल या कानों की बालियां पहनना चाहती हूँ। उत्तंका खुश हो गया। Now Uttanka met a huge man. Uttanka sets out to procure the earrings. In the forest meets a huge man seated upon a huge bull, which made him scared. The man asked him to drink a cup full of dirty water and assured him that it will help him. उत्तंका जब रास्ते में चलते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा था और एक विशाल आदमी से मिला तो देखा उसने कि वो विशाल आदमी एक बड़े से बैल के ऊपर बैठा है और उस आदमी ने उससे कहा कि एक कप गंदा पानी का देते हुए कहा था कि तुम इसको पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम अपने लक्ष्य में कामयाब होगे। Uttanka's meeting with the king. Uttanka reached the palace and went inside boldly, where he meets the king seated upon the royal throne. Uttanka bowed before the king respectfully and tells him that he has come from hermitage to fulfill his mistress' desire of wearing the queen's earrings, and if he did not get them, he will lose favor in his master's eye. King asks Uttanka to see the queen for this purpose. Uttanka goes to the queen, who, being impressed by him, gives him her earrings willingly.
At the same time, she also warns him about the Serpent King's greediness. To get hold of the earrings, he thanked her and starts his way back to the forest. तो उत्तंका जो था उस विशाल आदमी से मिलने के बाद और वो गंदा पानी पीने के बाद वो अंततः जब पहुंचा महल में, तो राजा ने उसको कहा था कि भाई तुम रानी से पूछ लो रानी क्या कहती है। उत्तंका रानी के पास गया तो रानी ने उसको खुशी खुशी कानों की बालियां दे दी, लेकिन ये चेताया कि सांपों के राजा से बच के रहो। उसने धन्यवाद किया रानी को और वापस आने को रवाना हुआ। स्नैचिंग ऑफ इयररिंग्स बाय द सर्पेंट किंग ऑन वे बैक टू द हर्मिटेज, उत्तंका फेल्ट टायर्ड एंड रेस्टेड बाय प्लेसिंग द इयररिंग्स ऑन द ग्राउंड beside him. Suddenly the serpent king came and snatched away the earrings from him. Uttanka struggled for the earrings. Uttanka tries his hand to get back the earrings. He runs all through the forest after the serpent king. With the help of an old man, he got inside the kingdom of the serpent king. He was able to force the serpent king by burning his kingdom and get back the earrings. Mistress blessing. And when he gave his mistress the earrings, the mistress blesses him for his courage. तो स्टूडेंट्स, सांप के राजा के द्वारा वो इयररिंग्स ले लिए जाने पर जब वो एक पेड़ के नीचे जंगल में सुस्ता रहा था आते वक्त, तो सांप के राजा ने वो इयररिंग्स छीन लिए। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद से उत्तंका जो है वो वापस अपनी इयररिंग्स पाने में कामयाब हो गया। पर इसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि सर्पेंट किंग का राज्य भी चलाना पड़ा। बाद में जब वो आकर के अपनी गुरु माँ को देता है वो इयररिंग्स, तो उसको बहुत उसके साहस के लिए बहुत बहुत आशीष देती है। उत्तंका's adventurous trip. When Uttanka relates his adventures to his master reveals that the dirty water he drank was ambrosia that had given him eternal youth. The two maidens weaving black and white threads were night and day. The wheels with 12 spokes in the year is the year, and its 12 months, and the boys were the seasons. The man whom he made for the was the god of rain, and the horse was the god of fire. तो स्टूडेंट्स, इस बीच में दो तीन और घटनाएं आती है। जब सांपों के राजा से वो अपनी वो इयररिंग्स वापस लेता है, उस दौरान कुछ और घटनाएं आती है। वो घटनाएं ये थी कि उत्तंका जो था उसने अपने मास्टर को सारी बातें अंततः बताई गुरु माँ को बालियाँ देने के बाद, कि रास्ते में उसको किस तरह से गंदा पानी पिलाया गया, किस तरह से दो औरतें थी जो सफ़ेद और काले धागों से कुछ बुन रही थी, और किस तरह से एक बड़ा सा चक्का उसने देखा जिसमें 12 तीलियाँ या 12 लकड़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है। और जो है कुछ लड़के भी उसने देखे थे, और यहाँ तक कि उस बूढ़े व्यक्ति से जो मिला था जो कि एक घोड़े पर सवार था। ये सारी बातें जब उत्तंका अपने गुरु को कहता है तो गुरु एक एक करके उसको बढ़िया से समझाते हैं कि ये तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए, और इस टेस्ट में क्या था कि गंदा पानी जो तुमको पिलाया गया था वो था हमेशा जवान रखने का नुस्खा। तो उस गंदे पानी को पी करके तुम हमेशा जवान रहोगे। दो औरतें जो तुमने देखी वो रात और दिन थे, जो काले धागे और सफ़ेद धागे से वो जो बुन रही थी, वो सफ़ेद धागा और काला धागा रात और दिन का प्रतीक था। तो चक्का तुमने देखा जिसमें 12 तीलियाँ या कड़ियाँ लगी हुई थी या लकड़ियाँ लगी हुई थी, वो 12 लकड़ियाँ जो है वो एक साल या मतलब 12 महीनों का प्रतीक था, और लड़के जो तुमने देखे वो मौसम के प्रतीक थे। जिस बूढ़े आदमी को तुमने देखा एक घोड़े पर सवार होकर के, वो घोड़ा तो था आग का देवता, और वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो बारिश का देवता था। Uttanka heads to his living. As he had fulfilled his duties well, the master reveals Uttanka to seek his living into the world and to avail the opportunity to earn great fortune ahead.
तो इस तरह से उत्तंका अपने लक्ष्य में कामयाब होता है। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुसीबतें झेलने के बाद उत्तंका अपने लक्ष्य में कामयाब होता है। और उत्तंका जब अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है तो जो है उसके मास्टर ने उसको बहुत सारी आशीष दी, बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि अब तुम जीवन जीने के लिए संसार समुद्र में जाओ और वहाँ पर अपना जीवन बढ़िया से बिताओ और हमेशा तुम्हें अच्छे मौके मिलेंगे और तुम अपना अच्छा भविष्य बनाओ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी उत्तंका's Guru Dakshina, which is the chapter 9 of your resolution book. Around 4 chapters have been deducted, and as far as I am recalling, Hai Maharaja chapter जो कि आगे आने वाला है वो भी probably आपका डिलीट हो चुका है। तो we will not read probably the Hai Maharaja chapter, और जो भी बचता है एक resolution chapter बचता है आई थिंक। तो एक आध चैप्टर ही बचे हुए हैं एंड द बुक विल कंप्लीट। सो टुडेज होमवर्क इज डू द इनिशियल 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। शुरू के 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के करो। किसी बच्चे ने पूछा था मुझे कि कौन से क्वेश्चन करें, तो जब मैंने शुरू के 5 क्वेश्चन या शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन बोले हैं किसी भी चैप्टर में, तो आपको शुरू के ही करने हैं। चाहे वो 20 वर्ड्स वाले हों तो 20 वर्ड्स वाले ही 5 करने हैं। बाद में अगर 50 वर्ड्स के या 60 वर्ड के डिफरेंट अलग अलग प्रकार के वर्ड कैटेगरी के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे मैंने करने नहीं बोले और चुन चुन के भी करने नहीं बोले। मैंने बोले कि शुरू के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अब शुरू के 5 क्वेश्चंस में अगर 3 क्वेश्चंस मान लो फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चंस अगर 15 to 20 वर्ड्स के दिए हैं और ठीक उसके बाद सपोज 60 वर्ड्स के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैंने 5 करने बोले हैं, तो आपको शुरू के 3 करने हैं और उसके बाद वाले 2 करने हैं। ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड डू सबमिट द नोटबुक्स एंड आई एम जस्ट होपिंग, वी आर जस्ट होपिंग दैट द स्कूल विल रिज्यूम सून, होपफुली फ्रॉम 1st of December। देखते हैं क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।